वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हमारे गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके टाइम पीरियड में, मतलब वो जब इंडिया में थे कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। तो पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश में कि कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय था, क्योंकि ये चेंज आया था। फिर हम लोग हिंदी में देख लेंगे। So first we will have to make 4 rows. So time period followed by post, place, and at last person. If we look at the time period, it started from the year 1757 and extended to the year 1773. In this, the first was given Governor of Bengal. That was selected Lord Clive. If you can remember, 1757 was the year of Battle of Plassey. In Battle of Plassey, Lord Clive, who represented the English, had defeated Siraj-ud-Dawla. So he was selected the Governor of Bengal. After that, from the year 1774 to the year 1833, was the Governor General of Bengal. This was the time period when the British Company interfered with the East India Company. So the East India Company earlier had a monopoly over India and they could do whatever they want, but the British interfered nowadays with the East India Company and they told that India will be under their rule. So the Governor General rule was started. The first Governor General of India was Warren Hastings. After that, from the year 1833 to the year 1858 was the Governor General of India. When the British ruled over India before 1858, India's provinces were divided in 3 viceroys. The first one was Calcutta, Bombay, and Madras. To bring all these presidencies under one rule for the easier of the British establishment, it was brought under one rule, and they were called the Governor General of India. The offices were in Calcutta, and the first Governor General of India was William Bentinck. From the year 1858 to 1947 was the Viceroy. So as you can see, from the year 1858 to the year 1947, 1858 is the year, 1857 is the year in which there was the revolt, and from 1858 the India came under the British crown and was no more under the East India Company. So the Viceroy was only a representative of the Queen in India. And 1947 is the year in which our India got independence. So the Viceroy of India, the first Viceroy of India, was Lord Canning. Now from the year 1947 to 1940 year, the year in which India got independence was the year 1947. So at first, when India got independence, India had no Governor General to be selected. So Lord Mountbatten was selected as the first Governor General of independent India. But as Lord Mountbatten was selected, there were many controversies that why an Englishman is still selected even after India got its independence. It is important to know over here that an Englishman represents that he is from British and not that he is a Christian. Does not matter if it is a Christian or a Muslim who will be the Governor General. The main concern of that Lord Mountbatten was a British person, and a British person can no longer remain back in India. So in next year, in 1948, he was removed, and we got the first Indian Governor General, C. Rajagopalachari. So as you can see, the governor was Lord Clive, then the Governor General of Bengal, Warren Hastings, first Governor General of India, William Bentinck, and the first Viceroy of India, Lord Canning, the first Governor General of Independent India, Lord Mountbatten, and the first Indian Governor General of Independent India, C. Rajagopalachari. I would suggest you that you can take a screenshot of this. Please wait a second. We remove these things. Yes, now you can take a screenshot of it. It will help you in the later stages. Now we will go on to the Hindi slides. तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। तो पहले 4 रो बनाएंगे। पहले लिखेंगे समय सीमा, फिर लिखेंगे पद, स्थान और व्यक्ति। तो पहले साल देखेंगे। अगर 1757 से 1773 की बात की जाए तो हमारे राज्यपाल थे बंगाल के लॉर्ड क्लाइव। अगर आपको याद है 1757 वो साल है जहाँ पर बैटल ऑफ पलासी लड़ाई हुआ था, और बैटल ऑफ पलासी में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंग्लैंड के लीडर थे लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने बंगाल के राजा सिराजुद्दौला को हरा दिया था और बंगाल पे कब्जा कर लिया था। तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर बने थे लॉर्ड क्लाइव।
फिर साल आता है 1774 से 1833। अगर इंडिया का पहले का देखा जाए हिस्ट्री, तो पूरा कंट्रोल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। पर ये टाइम पीरियड हम वो देखेंगे जहाँ पर जो ब्रिटिश कंट्री है उसने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के राजत्व में, और उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटिश का सब रूल चलेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ आपके गवर्नर जनरल बंगाल के, जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। फिर अगला टाइम पीरियड देखेंगे हम लोग 1833 से 1858। यहाँ पर सिलेक्ट हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया को देखा जाए तो फिर इंडिया को ब्रिटिशर्स 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर देते हैं। पहला था कलकत्ता, फिर था मुंबई और लास्ट में था आपका मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसीज को एक जगह पे लाने के लिए उन्होंने बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर जनरल ऑफ भारत। इसका ऑफिस था कलकत्ता में और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। फिर आया साल 1858 से 1947। 1857 आपको पता ही होगा कि रिवोल्ट हुआ था। 1947 हमारे देश को आज़ादी मिला था। इसके बीच में थे वाइसरॉय। वाइसरॉय इसलिए बोला जाता है कि पहले गवर्नर जनरल थे, पर अभी ब्रिटिश इंडिया जो है वो अंडर द ब्रिटिश क्राउन आ गया था। तो अगर क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वाइसरॉय थे। वाइसरॉय सिर्फ एक क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव थे जो क्वीन के हिस्सा इंडिया पे राजत्व करते थे, और इन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगर इंडिया के पहले वाइसरॉय की बात की जाए तो फिर वो थे लॉर्ड कैनिंग। फिर 1947 से 1948 की बात की जाए तो फिर गवर्नर जनरल थे। ये इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका था और पहले इंडिया के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बने थे तब ये काफ़ी विवाद में आ गया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया से जा चुके हैं, तब भी इंडिया के जो गवर्नर जनरल है वो एक ब्रिटिशर रह गए हैं, इसलिए उनको 1 साल बाद गवर्नर जनरल पद से हटा दिया गया था। और 1948 में इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी। अब हम लोग देख लेंगे जो गवर्नर जनरल बने थे वो लोग अपने टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुआ था। तो जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि पहले गवर्नर बने थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव 2 पार्ट में रहे थे। पहला पार्ट है 1757 से 1760, 3 साल के लिए, और फिर 2 साल के लिए बने थे 1765 से 1767। ये गवर्नर थे एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपको पता है कि बैटल ऑफ पलासी में जब बंगाल की आर्मी ब्रिटिशर से हार गई थी, उसके बाद आपका बंगाल ने फिर से लड़ाई किया था, वो था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में आपका बंगाल था, अवध था और मुगल था। इस लड़ाई में भी इंडियन जो फोर्सेस है वो ब्रिटिशर के पास हार गई थी, और हारने के बाद साइन हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन हुआ था तब गवर्नर थे आपके लॉर्ड क्लाइव। इन्होंने स्टार्ट किया था ड्यूअल पॉलिटी। अब ये ड्यूअल पॉलिटी क्या होता है ये समझते हैं। ड्यूअल पॉलिटी जैसा नाम से ही पता चलता है, शासक को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक होता है मॉनिटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अगर गांव के या फिर शहर के जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए, लोग के जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए कि कहीं पे नया पौधा लगाना है, इरिगेशन करना है, रास्ता को इम्प्रूव करना, वो सब आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। और कितना ट्रेड करना है, कहाँ पर टैक्स देना है, टैक्स का क्या क्या सिस्टम होता है, वो सब आता है आपका मॉनिटरी के अंदर। तो जितना मॉनिटरी कंट्रोल था वो सब ब्रिटिशर संभालते थे, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव था वो सब वहाँ के किंग संभालते थे। तो लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे वो सब में ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करते थे। उनको जो भी प्रॉब्लम वो होने दीजिए, उससे कोई ब्रिटिशर को फर्क नहीं पड़ता था। पर जितने मॉनिटरी कंट्रोल है पैसा को लेके वो सब ब्रिटिशर अपने पास रख देते थे। फिर आता है कमिटेड सुसाइड इन ब्रिटेन। बाद में जाके लॉर्ड क्लाइव ने शायद अपना चेहरा आईने में देख लिया हो या फिर कोई भी कारण हो, आखिर में वो जाके ब्रिटेन में जाके सुसाइड कर लेता है। फिर आते हेनरी वैनस्टेड। ये आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, ये एक गैप था 1760 से 1765, इसी के बीच बने थे हेनरी वैनस्टेड। तब हुआ था आपका बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बंगाल, अवध और मुगल के राजा मिल गए थे तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किए थे। ये लड़ाई हो गया था और इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हेनरी वैनस्टेड, इसलिए इनको गवर्नर से हटा दिया गया था। फिर लॉर्ड क्लाइव आए थे। लॉर्ड क्लाइव के बाद आते हैं हैरी फेलियर्स। हैरी फेलियर्स के टाइम बंगाल फेमिन 1770 हुआ था।
जो आप जानते हैं फार्मर्स और सब लोगों की कंडीशन बहुत बुरे तरीके से रख दिया जाता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ देखती थी कि अपने देश के लिए प्रॉफिट करना, और इसके लिए वो इंडिया की इतना बुरा हालत कर देते थे, और बंगाल के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी था, तो इसलिए बंगाल में काफ़ी फेमिन्स हुए हैं। इनमें से एक फेमिन तो मैनमेड भी था, जो कि इच्छा कारण चर्चिल ने इंडिया में करवाया था। फिर हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इंटरफेयर करने लगे थे। आप ये बात समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में इंटरफेयर करते हैं तब ये सोच के नहीं करते हैं कि अगर इंडिया में वो लोग आएंगे तो फिर इंडियंस का कुछ अच्छा करेंगे। वो लोग इसलिए सिर्फ इंटरफेयर करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि इंडिया से जितना भी प्रॉफिट हो वो पूरे ब्रिटिश को मिलना चाहिए और ना कि सिर्फ खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अगर हम लोग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेंगे तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ड्यूअल पॉलिटी ख़त्म कर दिया था। जो ड्यूअल पॉलिटी स्टार्ट हुआ था जिसमें रूल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था ड्यूअल पॉलिटी को। फिर आता है 1747 में। फिर आते हैं 1774 में, जब कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। ये बात याद रखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था इंग्लिश द्वारा, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया को वो दिखा पाए कि वो कितने सही सोचते हैं और उनका कितना अच्छा मतलब है इंडिया में रहने के लिए। बस सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये नियम था कि कोई भी जो इंडियन जज है वो फॉरेनर का कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब कोई फॉरेनर अगर कुछ भी करे और उससे कोर्ट में लाया जाए तो फिर कोई इंडियन जज वहाँ पर नहीं बैठ सकता। और दूसरा, आपका पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा था कि अगर कोई फॉरेनर कोई खुद भी कर दे तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए माफ़ कर दिया जाता था। और कोई इंडियंस अगर टैक्स भी ना भरे, अगर कोई फार्मर टैक्स ना भरे तो उसको पूरा जीवन जेल में भी बिताया जा सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट बनाने का यही सिर्फ एक मतलब था कि पूरा दुनिया को ब्रिटिशर्स दिखा सके कि ब्रिटिशर्स जो काम करते थे वो कितना सही करते थे। फिर आता है 1784 में विलियम जोन्स ने एस्टैब्लिश किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश किया था। जो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ ब्रिटिशर ने बनाया था पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितना सही काम करता है और सभी गलत है, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पहला जुडिशियल मर्डर, जो कि है नंद कुमार की मौत। नंद कुमार की मौत इसलिए हुआ था कि नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ एक बात बोला था कि वो जमींदार और जितने भी बड़े घरों के लोग हैं उनसे पैसा लेके उनका जो गलत चीज़ होते हैं वो सब दबा देते हैं और वो सब माफ़ कर देते थे। तब नंद कुमार ने सोचा था कि जब सुप्रीम कोर्ट बना है, जब न्यायपालिका बनी है, तब उनके पास जाके उनको जस्टिस मिल सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर कोर्ट में जाके उनको ये पता चल गया कि कोर्ट के कोई भी उनकी बात नहीं सुनेंगे और वॉरेन हेस्टिंग्स में झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए नंद कुमार को फांसी की सज़ा मिल गई थी। तो इससे सब इंडियंस को क्लियर हो गया था कि जो कोर्ट बनाया गया वो सिर्फ एक नाटक के लिए बनाया गया है और वो किसी भी इंडियन के लिए फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर कलकत्ता की पहली मदरसा जो है आलिया यूनिवर्सिटी, ये भी फाइंड की गई थी, इसे भी बनाया गया था। उनके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस और फादर ऑफ पुलिस सर्विस बोला जाता है। अब ये पुलिस सर्विस और सिविल सर्विस क्यों स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये भी समझते हैं। जब सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस पहले स्टार्ट किया गया था तब जितने भी थे सब ब्रिटिशर्स इसमें इंक्लूड होते थे, और क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी काम करते थे वो सब जाते थे गवर्नर के थ्रू, तो फिर वो गवर्नर के बहुत लॉयल होते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक बहुत जोरदार जगह बना लेती थी। आप ये बात समझिए कि मान लीजिए कोई लीडर है, कोई लीडर ने मान लीजिए एक पर्सन को नौकरी दी है, तो वो लोग कभी भी लीडर के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का असली मंसूबा, ये सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस स्टार्ट करने के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम और सनसेट लॉ भी स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दुनिया को दिखाने के लिए और किताब में पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है कि जो टैक्स सिस्टम होता है उसका एक रेगुलेटेड टैक्स सिस्टम निकाल गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये भी एक गलत सिस्टम है। जमींदारी सिस्टम की अगर बात करें तो जमींदारी सिस्टम में होता था कि जमींदार को फार्मर से टैक्स लेना पड़ता था
और फिर वो टैक्स कलेक्ट करके दे देते थे आपके ब्रिटिशर्स को। तो फार्मर्स से जो वो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका एक हिस्सा जमींदार अपने पास रख देते थे। मान लीजिए जमींदार रखते थे अपने पास 10% टैक्स का। जमींदार जब 10% टैक्स रख देते थे और बाकी जो भी टैक्स बचा रहता था वो सब मिलता था ब्रिटिशर्स को। इसके लिए जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा टॉर्चर करते थे ताकि फार्मर ज़्यादा टैक्स दे तो उनके पास ज़्यादा फायदा हो। मान लीजिए टैक्स है 100 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ जमींदार के पास रहेगा और 90 ब्रिटिशर के पास। जमींदार जब फार्मर पर टॉर्चर करते थे ताकि उनसे ज़्यादा पैसा ले पाए तो 100 की जगह 200 रुपये टैक्स देते थे और उसमें से जमींदार को मिल रहा था 10% के अकॉर्डिंगली 20 रुपये और ब्रिटिशर के पास 180 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हो दोनों ब्रिटिशर और जमींदार को फायदा होता था। फार्मर जब ब्रिटिशर के पास जाते थे जमींदार के खिलाफ कंप्लेन करने तो जमींदार कभी भी उनका बात नहीं सुनते थे और जमींदार को हमेशा सपोर्ट करते थे कि उनमें इनका भी फायदा था। फिर आता सनसेट लॉ। अब सनसेट लॉ क्या होता है समझते हैं। आपको पता ही होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया, जमींदार फार्मर से पैसे कलेक्ट करके ब्रिटिशर को पैसा दे देते थे। पर ब्रिटिशर्स ने ये नियम बनाया था कि फिक्स डे पे जब जमींदार को पैसा देना होगा उसको सनसेट लॉ से मनाया जाएगा या फिर सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम बात से पता चल रहा है कि जितना टाइम में सूरज डूबेगा उससे पहले जमींदार को टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देना होगा। सूरज कब डूबता है, कभी 4 बजे डूबता है तो कभी 6 बजे, ये कभी फिक्स नहीं था। तो जमींदार हमेशा ट्राई करते थे कि 12 बजे तक ब्रिटिशर्स को उनका टैक्स दे दे, फार्मर्स से ले गए। इसलिए बोला जाता है कि तुम्हारे चेहरे पे 12 बज गए हैं। 12 बज गए इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारे चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए जमींदार कुछ भी करके 12 बजे से पहले जितना फार्मर से होता था टैक्स कलेक्ट कर लेते थे और वो ब्रिटिशर को पहुंचा देते थे। 1789 में उन्होंने स्लेव ट्रेडिंग बंद कर दिया। स्लेव ट्रेडिंग बंद कर दिया। स्लेव का जो सिस्टम होता है वो अबॉलिश नहीं किया था। वो एकमात्र गवर्नर जनरल है जो इंडिया में चल बसे थे और उन्होंने बनाया था लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं और अपीलेट कोर्ट। फिर आते हैं सर जॉन शोर। ये बहुत ही शांति से थे और ये मैसूर में जो लड़ाई चल रहा था टीपू सुल्तान के साथ, हैदर अली के साथ, उनमें इन्होंने टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। और इनका नाम में तो शोर है बट बहुत शांति से ये आए और शांति से ही चले गए। ये थे 1793 से 1798 तक। फिर आए ब्रिटिशर के सबसे शैतान या फिर बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल्स, लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने स्टार्ट किया सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है समझते हैं। सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर इंडियन रूलर पे नियम लगा देते थे। उसमें पहला नियम ये था कि ब्रिटिशर जितने भी सोल्जर है वो सब इंडियन किंगडम में आ सकते हैं। दूसरा नियम यह था कि इंडियन किंगडम में जितना भी ब्रिटिशर है उन सब का खाने का खर्चा जितना कुछ है इंडियन रूलर देगा। और तीसरा ये नियम था कि अगर इंडियन रूलर दूसरे किसी रूलर से बात करना चाहे, चाहे वो फ्रेंच से भी बात करना चाहे या इंडिया के दूसरे किसी किंगडम से बात करना चाहे, तो उनसे ब्रिटिश से परमिशन लेना होगा बात करने से पहले। तो आप समझ सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस जिस स्टेट पे लगाया जाएगा वो स्टेट बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने किया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब एंग्लो मैसूर वॉर टोटल में 4 हुए थे, जिसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। उन्होंने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी लड़ा था। तो एंग्लो मराठा वॉर अगर देखा जाए तो टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। सेकेंड में जो पेशवा होते थे मराठा के, वो पेशवा को सिर्फ नाम के रह गए थे और पेशवा रह गए थे सिर्फ नाम के। और जितने भी उनका रूल था सब वो लोग पेंशन में रहते थे ब्रिटिशर के तरफ से और ब्रिटिशर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इंटरफेयर करते थे। उनके बाद आए सर जॉर्ज बर्लो। इनके टाइम में हुआ सिपाही म्यूटिनी इन वेल्लोर। अगर आपको आरसी मजूमदार की बात याद है जो 1857 रिवोल्ट के बाद बोला गया था कि 1857 रिवोल्ट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप देख सकते हैं 1805 में ही सिपाही रिवोल्ट हुआ था वेल्लोर में, जो कि काफ़ी पहले 1857 से काफ़ी पहले। इससे पहले भी हम लोग ने ट्राइबल रिवोल्ट और फार्मर रिवोल्ट में भी देखा है कि काफ़ी रिवोल्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 रिवोल्ट के पहले। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो साइन करते हैं अमृतसर ट्रीटी विद महाराजा रणजीत सिंह। अब अमृतसर ट्रीटी क्या था? अमृतसर ट्रीटी में ये डिसाइडेड था, पहला बात ये डिसाइडेड था कि उनके आर्मी में कितने रहेंगे, उनका रीजन कितना रहेगा और पंजाब का रीजन कितना रहेगा। ये बोला गया था कि कोई भी ब्रिटिश ना
पंजाब के रीजन में इंटरफेयर करेंगे और ना ही पंजाब करेगा ब्रिटिश के रीजन में इंटरफेयर। और दूसरा ये बात था कि रणजीत सिंह अपने आर्मी में किसको भी रख सकते, यूरोपियंस को भी रख सकते हैं, क्योंकि उनका यूरोपियंस के साथ अच्छा दोस्ती था, इसलिए यूरोपियंस को भी रणजीत सिंह ने अपने आर्मी में रखा था। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियंस उनके आर्मी में इसलिए सिर्फ गए थे ताकि महाराजा रणजीत सिंह जब ना रहे वो पंजाब पे कंट्रोल कर पाए। और सबसे अच्छा तरीका है कि पंजाब की जो आर्मी है उनमें यूरोपियंस इंक्लूड हो जाए। तो अमृतसर ट्रीटी में ये दो बात मेन था। फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने साइन किया था सुगोली ट्रीटी। सुगोली ट्रीटी से हम लोग को पता चल तब डिसाइड हुआ था बाउंड्री ऑफ नेपाल। ये जो भी डिबेट हुआ था ये रिसेंटली नेपाल के बाउंड्री को लेके ये सब हुआ था सुगोली ट्रीटी के वजह से। और सुगोली ट्रीटी में और भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो फिर काली नदी के वजह से, काली नदी का रीजन कौन सा है और काली नदी कहाँ से बहती है उसको लेके डिबेट हुआ था। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है इस डिबेट के बारे में और नेपाल और इंडिया के प्रॉब्लम के बारे में तो खान सर का एक वीडियो है, तो मुझे याद नहीं है अच्छे तरीके से, शायद उसका नाम है खान GS रिसर्च वीडियो, जो यूट्यूब में है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, काफ़ी फेमस चैनल है। फिर आता है कंट्रोल्ड पिंडारी। पिंडारी आपके मराठा लूटर्स थे जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे मराठा लूटर्स, तो उन्हें कहा जाता था पिंडारी। फिर आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जैसे मैंने बोला कि 3 एंग्लो मराठा वॉर थे, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा सारे पावर लूज कर देते थे और वो सिर्फ पेंशन के बदौलत जिंदा थे ब्रिटिशर्स से, पर पेशवा को ये कभी भी मंजूर नहीं था और इसी के लिए हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसमें जो पेशवा होते हैं उनको पूरे तरीके से हटा दिया जाता है और मराठा के जो पावरफुल फैमिलीज होते हैं उनको इंडिया का डिफरेंट रीजन दिया जाता है कि वो इंडिया के डिफरेंट रीजन पे रूल करे और वो रहेंगे अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर वो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कैलकाटा। प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कैलकाटा जो वो स्टार्ट करते हैं वो इसलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिशर को वो जो ब्रिटिशर वो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको और भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर पाए, पर इसका उल्टा ही हो जाता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज ना जाने कितने डिफॉल्ट और कितने स्ट्रगल के लिए एक घर बनता है कैलकाटा के लिए। कैलकाटा का जो यूथ है जिसमें स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है आपके प्रेसिडेंसी कॉलेज में। ये ना सिर्फ पहले की बात है 1813-23 की बात है, पर अभी भी जो भी स्ट्रगल होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट यूनियन होता है, सबसे बड़ा हाथ उसमें प्रेसिडेंसी कॉलेज का होता है। अब देखेंगे कंक्लूजन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और आपने खुद भी देखा कि ब्रिटिश हमेशा सबको दिखाना चाहती है कि वो लॉस बना रही है, जैसे कि आपका सनसेट लॉ, जमींदारी रूल, फिर आपका जुडिशरी सिस्टम, सब्सिडियरी अलायंस, सबको दुनिया को ब्रिटिश ये हमेशा दिखाना चाहती थी क्योंकि वो ब्रिटिशर्स है और वो गोरे चमड़े हैं, तो फिर वो सबका भलाई के लिए काम करते हैं। पर वो सिर्फ अपने देश के लिए, जो कि बर्फ़ के चादर से ढका हुआ एक देश है, सिर्फ उसके लिए काम करते थे और उसके फ़ायदे के लिए काम करते थे। अगला था व्हाट एवर द ब्रिटिश डिड। ये सब इसीलिए करते थे ताकि ब्रिटिश एम्पायर को सुप्रीम कोर्ट बनाना, सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटिशर को हेल्प करते थे। फिर आपका पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, ये सब स्टार्ट करना ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो इंडिया पे और भी ज़्यादा हो पाए थ्रू द एम्प्लॉयज़ एंड द वर्कर्स। तो आप देख ही सकते हैं ब्रिटिश ने जो भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया, पर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं। और हमारे कुछ किताब में ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कुछ किताब में ये भी लिखा जाता है कि ब्रिटिश ने इंडिया में आके इंडिया का रूल जो नियम होते हैं वो सब सुधारा और बहुत कुछ अच्छा इंट्रोड्यूस किया। ये सब सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ब्रिटिश अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। और जो डिप्लोमेसी होता है इंडिया और ब्रिटेन, इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब इंडिया और इंग्लैंड के साथ, ये सब में ताकि पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स हैं उनको अच्छे तरीके से दिखाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया तो शुक्रिया, और अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन जियोग्राफी के इंडियन हिस्ट्री के और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। इंडियन हिस्ट्री के अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।